Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, welcome once again after the half-yearly exams to your online session. Okay. So class, we are doing unit 2 of our GK syllabus, and we have done all near about 6 to 7 chapters of the topics of the unit 2, and today we are going to start with the one more topic of the same unit. Okay, that is Starry Sky, given at page number 68. So class, open your books at page number 68, that is Starry Skies. I'll just write down the topic, that is Starry Sky, STARRRY. Starry Sky, given at page number 68. Starry Sky. Okay, STARRY, that is Starry Sky. So what is the meaning of Starry Sky? So Starry Sky का मीनिंग क्या है बेटा? So देखिए, हमने इस टॉपिक के हिसाब से, इसके नेम के हिसाब से आप जज करिए. देखिए, the topic is about the stars, okay, about the sky. Okay, there are various planets in the sky, and today we are going to talk about the various planets in our solar system. Okay, and we are going to talk about the universe. Okay, the solar system in this. Okay, so interested in stars and heavenly bodies, read these facts about the stars. Okay, अगर आपको heavenly bodies या stars के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. So the various planets in the, okay, you know that there are various planets, 8 planets in our solar system: lunar eclipse, solar eclipse, galaxy, Milky Way. These all are the heavenly bodies, okay, that is present. Okay, so today we are going to start with the various stars and the planets. आज हम कुछ अलग अलग stars और planets के बारे में बात करेंगे. Okay, starting with the first one. Guess what is the brightest star in the sky that can be seen from the earth? Is it the sun? It looks very big because it is the nearest star to the earth. Okay, so हम किसकी बात कर रहे हैं? Here we are talking about the brightest star in the sky. So sky में सबसे brightest star कौन सा है? Which is the brightest star in the sky? That is sun. सूरज जो है वो सबसे brightest star है. Okay, और वो अर्थ के सबसे नजदीक है, and that star is also nearest to the sun. So stars क्या होते हैं बेटा? So अर्थ के जो सबसे पास जो स्टार है, you know the sun is also stars. Stars होते क्या है बेटा? Stars are those which have their own light. जो stars के होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, and you know that जो sun है उसकी खुद की भी लाइट है, उसकी एक्चुअली उसी की ही ज्यादा लाइट है. Okay, so जो sun is also considered as a star. Okay, so the sun is the brightest star. Okay, सबसे brightest चमकीला स्टार है हमारे स्काई में, एंड ये जो है कि अर्थ से भी देखा जा सकता है, इसको हम धरती से भी देख सकते हैं. इट लुक्स वेरी बिग बिकॉज इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. और ये इतना बड़ा क्यों नजर आता है? क्योंकि ये अर्थ के पास, इट इज वेरी नियरेस्ट टू द सन, सॉरी इट इज वेरी नियरेस्ट टू द अर्थ. तो ये सन है, ये इतना बड़ा क्यों नजर आता है? बिकॉज ये हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, उसके बहुत पास है. So this is the reason why this sun looks so big. Okay, so the sun is the brightest star in the sky and can be seen from the earth. It looks big because it is very nearest to the earth. Okay, and this is the most nearest star to the earth, and it provides light. Okay, ये हमें light देता है, rays, sun की rays. Second one, Mercury. Mercury is the smallest and the closest planet to the sun. It takes only 116 days to go around the sun. Okay, so जो Mercury है वो सबसे छोटा planet है. Okay, so Mercury is the smallest planet and it is the closest planet to the sun as well.
ओके, जो मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड इट टेक ओनली 116 डेज टू गो अराउंड द सन। और इसको सिर्फ 116 दिन 116 डेज लगते हैं सन का एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में। ओके, सो नियर अबाउट 4 मंथ्स, मतलब 4 मंथ से भी कुछ कम ही टाइम में जो ये मरकरी है, ओके, सो जो दिस मरकरी इट कैन कंप्लीट अराउंड द सन इन द लेस देन 4 मंथ्स। तो 116 डेज में जो मरकरी है वो सन के अराउंड अपना पूरा जो सर्कल है वो कंप्लीट कर सकती है। ओके, सो द फैक्ट्स अबाउट द मरकरी इज इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ओके, सेकेंड इज इट इज द क्लोजेस्ट टू द सन and third is that it takes only 116 days to go around the sun, to take a round of the sun। तो सन के इर्द गिर्द या सन के अगल बगल घूमने के लिए सिर्फ 116 दिन उसको लगते हैं। ओके, नेक्स्ट, millions of stars together form a galaxy. The earth and the sun belongs to the Milky Way galaxy। ओके, जब बहुत सारे स्टार्स आपस में मिलते हैं तो वो एक गैलेक्सी बनाते हैं। ओके, जब जैसे आप पिक्चर में देखिए, आप एज यू कैन सी द पिक्चर, देयर आर वेरियस स्टार्स इन इट। ओके, सब जब बहुत सारे स्टार्स बन जाते हैं तो वो एक गैलेक्सी की फॉर्म बन जाती है, दैट इज नोन एज द गैलेक्सी। व्हेन द वेरियस स्टार्स दे जस्ट मीट, इट इज नोन एज दैट इट हैज बिकम अ गैलेक्सी। बट जो ये बहुत सारे स्टार्स जब इकट्ठे मिलते हैं तो उसको गैलेक्सी बोला जाता है। ओके, बट जो अर्थ और सन है वो भी एक गैलेक्सी का ही पार्ट है and that belongs to the Milky Way galaxy। Earth और Sun they are also the part of the galaxy and they belong to the Milky Way galaxy। Earth और Sun कौन सी गैलेक्सी में आते हैं? That belongs to the Milky Way galaxy। Next, on a clear dark night the star seems to twinkle। In fact, the most of the stars are shining with a steady light। The movement of the air in the air blanket surrounding the earth causes the starlight to get slightly bent as it travels from the distant star through the air blanket down to us on the ground। To our eyes it makes the stars seem to twinkle। ओके, सो देखिए आपने देखा होगा जब भी जिस दिन आसमान क्लियर होता है, जिस दिन आसमान साफ होता है, उस दिन आपको दिखता है कि जो स्टार्स है बहुत ज्यादा चमकते हैं। और कई जो स्टार्स अगर आप उसको लगातार देखते रहो तो ऐसा लगता है कि वो गायब हो गया, फिर आ गया। तो वो रीजन क्या होता है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एयर। जो एयर है उसकी वजह से वो हमें ऐसा लगता है कि वो आ जा रहे हैं। ओके, बट एटलीस्ट दे आर विद स्टेडी लाइट। उनकी ऐसा नहीं कि वो कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी उनकी लाइट ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। दिट इज नॉट लाइक दैट। वो अपनी पोजीशन पे परमानेंट रहते हैं, उनकी लाइट भी परमानेंट रहती है, बट ड्यू टू द एयर ब्लैंकेट, एक एयर की एक जो चादर होती है जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से हमें कई बार वो स्टार दिखने बंद हो जाता है एकदम से, कभी उसकी लाइट स्लो कम लगती है, फिर एकदम से ज्यादा लगने लग जाती है। दिस इज द रीजन व्हाई दे सीम लाइक दिस एंड वी टेक इट एज दैट दे आर ट्विंकलिंग। एंड हम सोचते हैं कि दैट दे आर ट्विंकलिंग, वो चमक रही हैं। ओके, सो बट द एक्चुअल रीजन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एयर ब्लैंकेट इन द एटमोस्फेयर। These stars seems to like that they are twinkling। इसी वजह से वो लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, वो चमक रहे हैं। Okay, so these are the stars that we are talking about, the stars। Okay, and other than that, the movement of air in the air blanket surrounding the earth causes the starlight to get slightly bent as it travels from the distant star through the air blanket down us on the ground। To our eyes it seems like twinkling। ओके, सो इस एयर ब्लैंकेट की वजह से वो हमें डिस्टेंस बिकॉज द स्टार्स आर देयर वेरी फार। ओके, द स्टार्स आर देयर वेरी फार, दैट्स व्हाई दे सीम लाइक दिस। जो देखो कोई भी चीज जब दूर होती है तो वो हमेशा छोटी नजर आती है, बट जैसे आप उसके पास जाते हो तो वो बड़ी दिखनी शुरू हो जाती है। सो तो ये स्टार्स हैं, ये बहुत ही दूर हैं। ओके, जो ये स्टार्स हैं ये बहुत ही दूर हैं और जिसकी वजह से ये हमें छोटे नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि स्टार छोटे छोटे इतने होते हैं, नो, दे आर वेरी बिग इन साइज, बट ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ओके, सो दे सीम लाइक वेरी स्मॉल, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एयर ब्लैंकेट sometimes it just we look when we continue see it and वो एयर ब्लैंकेट की वजह से वो समटाइम हमें एकदम से दिखने बंद हो जाएंगे, उनकी लाइट कम नजर आएगी,
तो हमें ये लगता है दैट दे आर ट्विंकलिंग, बट एक्चुअली दे आर प्रेजेंट देयर ओवर देयर ओनली. ओके, वो एक्चुअल में वही रहते हैं एंड देयर लाइट इज ऑल्सो वेरी स्टेडी. ओके, नेक्स्ट इज Proxima Centauri. Proxima Centauri, one of the stars of the triple star system. Alpha Centauri is the closest star to the sun at a distance of only about 4.2 light years. Okay, so the next जिसकी हम बात करें, we are talking about the Proxima Centauri. ओके, एंड ये एक जो ट्रिपल स्टार सिस्टम है उसी का पार्ट है. और अल्फा सेंटोरी, दिस इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन. ओके, जो सन के क्लोजेस्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन? दैट इज अल्फा सेंटोरी. CENTAURI, दैट इज द नेम ऑफ द स्टार दैट इज क्लोजेस्ट टू द सन. ओके, और ये इसका जो डिस्टेंस है इससे ओनली 4.2 लाइट ईयर्स है. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस अल्फा Centauri from the sun. Okay, so Proxima Centauri, one of the stars of the triple star system. So these are the stars होते हैं, इनके names है. जैसे हम बात कर रहे हैं ना, अलग अलग stars होते हैं, इनके names. Sun is the name of a star. So this just like that is Proxima Centauri and Alpha Centauri. These are the names of the stars given by the various scientists. अलग अलग stars को अलग अलग scientists ने कुछ name दिए हैं. And इसी reason की वजह से जो ये भी एक स्टार है, ये भी जो स्टार्स इनको नेम दिया हुआ है. ओके, और ये जो अल्फा सेंचुरी है, दिस इज द वेरी क्लोजेस्ट स्टार टू द सन. सो नेम ऑफ द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन इज अल्फा सेंचुरी. नेक्स्ट इज अ नेबुला. यू हैव हर्ड अबाउट नेबुला. नेबुला इज अ ह्यूज क्लाउड of the gas and the dust in the space. Scientists believe that new stars form inside these nebulas. ओके, सो नेबुला, जब जो देखो हर जगह आपको पता है कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. सो कुछ डस्ट एंड गैस इज ऑलवेज प्रेजेंट. ओके, सो जो स्पेस में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या गैसेस हैं, जब ये इकट्ठे होती हैं तो दे फॉर्म अ नेबुला. Okay, when the gases and the dust particles in the space, okay, so जो gases और dust particles हैं space में जब ये इकट्ठे होते हैं, they together form a nebula. And the scientists, they believe that the various stars, they are formed through this nebula only, or in this nebula only. Okay, जब बहुत सारे dust particles और गैसेस इकट्ठी मिलती हैं, सो वो एक नेबुला फॉर्म करती है. क्लाउड, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्लाउड. एक बादल की शेप में, काले क्लाउड की शेप में ये नेबुला फॉर्म होता है. बट सो दिस नेबुला इज फॉर्म, ओके, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्लाउड. बट द साइंटिस्ट हैं, दे बिलीव दैट द वेरियस स्टार्स, दे आर फॉर्म थ्रू दिस नेबुला ओनली. वो बिलीव करते हैं कि ये जो स्टार्स है, अलग अलग स्टार्स हैं, ये इस नेबुला से ही बनते हैं. ओके, सो इस नेबुला में ही बन सकते हैं, इसी के अंदर बनते हैं. सो दिस इज बिलीव्ड बाय द साइंटिस्ट्स ओनली. ये साइंटिस्ट हैं जो हमारे वो बिलीव करते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज अर्सा मेजर. सो नेक्स्ट वन इज अर्सा मेजर. अर्सा मेजर is a constellation located in the northern sky. It is the third largest constellation in the sky. It is the 7 bright stars within Ursa Major form a shape called the Big Dipper that looks like a cup with a long handle. In India, these 7 stars are imagined to be the 7 wise men or the Saptarishi. Okay, Ursa Major आप सबने देखा भी होगा, and you can normally see in the sky due to starry clear night में आप easily इसको देख सकते हैं. आपने देखा होगा, देखिए जैसे कि उन्होंने लास्ट लाइन लिखा था, इंडिया इज नोन एज सप्तऋषि. तो अगर जिनको नहीं पता है, दे कैन जस्ट आस्क योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से बोलिए, वो आपको दिखाएंगे. आज ही के आज रात को अपने पेरेंट्स से बोलिए कि वो आपको अर्सा मेजर दिखाएंगे या फिर सप्तऋषि दिखाएंगे आसमान में. सप्तऋषि एक्चुअली होता क्या है, दिस व्हाट इज दिस अर्सा मेजर एक्चुअली. ओके, दीज आर द 7 स्टार्स. ये 7 तरह के स्टार्स हैं, और ये 7 तरह के नहीं, ये 7 स्टार्स हैं. और जो ये इनकी पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ दीज स्टार्स आर लाइक दिस. जैसे लगता है कि कोई एक कप विथ हैंडल, विद अ लॉन्ग हैंडल इज इट. ओके, आई जस्ट शो यू. ओके, दिस आर द स्टार 1,
2 3 4 okay 4 6 ओके सो दिस इज द शेप। अब इसको आप देखिए इफ यू मीट इट ओके सो ऐसा लगता है ना कि एक कप है लंबे से हैंडल के साथ। ओके सो दिस इज अर्सा मेजर। तो दिस इज द पोजीशन। देखो मैंने आपको पॉइंट्स दी हैं, इसकी शेप नहीं, ये नहीं है कि उसमें ऐसे लाइंस बन जाती हैं उसमें ऐसे नहीं बनता। दे आर जस्ट लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 and 7 ओके। तो इसकी अगर हम मिलाते हैं रफली so it is known as that it is a cup with a long handle. So this is Ursa Major जिसको कि इंडिया में सप्तऋषि बोला जाता है। ओके जो ये 7 स्टार्स हैं ये इकट्ठे आपको आसमान में क्लियर नाइट में आपको इजीली दिखेंगे एंड यू कैन आस्क योर पेरेंट्स टुडे ओनली एंड जस्ट आस्क देम टू शो यू द सप्तऋषि इन द स्काई। एंड अदर देन दैट Ursa Major is the constellation located in the northern sky. तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई है उसमें ये नजर आता है जो ये Ursa Major है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई और ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन है स्काई में। 7 ब्राइट स्टार्स विद इन Ursa Major फॉर्म अ शेप लाइक द बिग डिपर दैट लुक्स लाइक अ कप विद अ लॉन्ग हैंडल। तो ये जो 7 स्टार्स है मिलके ऐसी एक शेप फॉर्म करते हैं, ऐसा लगता है कि ये कप है विद अ लॉन्ग हैंडल। ओके इन इंडिया दीज 7 स्टार्स आर इमेजिन्ड टू बी द 7 वाइज मैन। और इंडिया में माना जाता है कि ये जो 7 स्टार्स हैं जो ये सप्त ऋषि इनको बोलते हैं कि बोला जाता है कि ये 7 ऋषि हैं। 7 वाइज मैन में जो 7 ऋषि हैं दे आर द 7 ऋषि हैं जिनके आफ्टर देयर दैट दे बिगिन द स्टार्स एंड दे हैव टेकन द फॉर्म ऑफ दिस। उन्होंने इस तरह की एक शेप ले ली है। सो इट इज बिलीव्ड इन इंडिया ओनली। सो दे आर नोन एज द सप्तऋषि। इन द नॉर्मल लैंग्वेज वी कॉल इट सप्तऋषि बट इन द साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज Ursa Major. It is Ursa Major. Clear? Next is quick quizzes here. So let's move to the quick quiz. Sorry class, due to electricity problem, the light is not proper. We are having the long cuts. So the first one is What do we call a dying star? जिसको हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा, जो मरता, जिसको डाइंग स्टार बोला जाता है, टूटता हुआ तारा जिसको हम बोलते हैं। तो उसको एक्चुअल में क्या कहा जाता है इन द साइंटिफिक लैंग्वेज? व्हाट वी कॉल अ डाइंग स्टार, सो दैट इज सुपरनोवा। ओके साइंटिफिक लैंग्वेज में जो टूटता तारा है उसको सुपरनोवा बोला जाता है। ओके बट इसको हम इन इंडिया वी कॉल इट एज टूटता तारा, जिसको हम बोलते हैं कि व्हेन यू एवर सी दैट, जब भी आप टूटता हुआ तारा देखें तो विश मांगे तो पूरी होती है। सम पीपल बिलीव दिस बट एक्चुअली इट इज अ सुपरनोवा, दैट इज अ डाइंग स्टार। दिस इज द नेम ऑफ अ डाइंग स्टार, दैट इज SUPERNOVA, दैट इज सुपरनोवा। सेकेंड, the position of which star is used to find direction? Okay, directions find out करने के लिए किस स्टार की पोजीशन देखी जाती है? Suppose you are lost in a somewhere in a dense forest or somewhere and you want to know that in which direction you want to move. आपको जब पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, but डायरेक्शंस कैसे पता लगेंगी? जहां से खड़े होगे वहीं पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करेंगे? नो। सो उसके लिए क्या करते हैं? दे टेक द हेल्प ऑफ द नॉर्थ स्टार। ओके सो नॉर्थ में जो एक जो स्टार है जो कि हमेशा नॉर्थ में ही रहता है, ओके दैट इज द नेम ऑफ अ स्टार, इसलिए इसको नॉर्थ स्टार, वो हमेशा नॉर्थ साइड में ही रहता है। सो उसी से पता लगता है दैट दिस इज द नॉर्थ वे। ओके सो दैट इज द नॉर्थ स्टार। सो द पोजीशन ऑफ दिस स्टार इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन एंड द नेम ऑफ दिस स्टार इज नॉर्थ स्टार, NORTH, नॉर्थ स्टार। Third one, which heavenly bodies in the sky produce their own light? Yes, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि कौन सी heavenly bodies हैं स्काई में जो कि अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करती हैं। That are
स्टार्स, दैट आर स्टार्स, वो सिर्फ स्टार्स हैं जो कि खुद अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं. जस्ट लाइक सन इज ऑल्सो अ स्टार एंड इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट. जो सन है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्टार एंड इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट. फोर्थ वन, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? सो विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? दैट इज Venus. So Venus is the hottest planet in the solar system. So that is Venus. Venus. Venus is the hottest planet in the solar system. जो हमारा solar system है उसमें जो गर्म planet है, सबसे गर्म, because it is closest to the sun, that's why it is the one of the hottest planet, and it is Venus. Next, what is the name given to the blanket of the air covering the earth? ओके, जो ये एयर की एक ब्लैंकेट है जिसने कि हमारी पूरी अर्थ को कवर किया है, उसको क्या नाम दिया गया है? सो व्हाट इज द नेम गिवन टू द ब्लैंकेट ऑफ द एयर, नेम गिवन टू द ब्लैंकेट ऑफ द एयर दैट कवर्स द अर्थ. जो हमारी अर्थ को एक तरफ से एयर की ब्लैंकेट से ढका हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. कई लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर. इट इज नॉट एटमॉस्फेयर, इट इज एटमॉस्फेयर. ATMOSPHERE. दैट इज एटमॉस्फेयर. ओके, so these are the answers of the quick quiz given at page number 69. The first one is the supernova, second is the north star, third is the stars, fourth is the Venus, and the fifth one is the atmosphere. Okay? Okay. Now let's move to the next topic that is given at page number 71, sources of energy. So let's move to the next topic that is given at page number 71, that is sources of energy. So you can just pause the video here and write down these answers. Okay, but I have to move further, so I have to erase it. The next topic is sources of energy. Given at sources of energy, given at page number 71. Okay. What is the meaning of sources of energy? आपको पता है हमें बहुत सारी एनर्जीज हैं. एनर्जी मतलब ये नहीं जो खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है. अदर देन दैट देयर आर सेवरल एनर्जीज दैट यू विल फाइंड अराउंड योरसेल्फ, लाइक सन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी. ओके, सोलर लाइट, सोलर एनर्जी जिसको आप बोलते हैं, जो सोलर एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है? सन से. सो ऐसी ही बहुत सारी एनर्जीज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट वी कैन फाइंड अराउंड अस. ओके, एंड वी आर यूजिंग इट इन आवर डेली लाइफ एज वेल. कैन यू नेम द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग यूज्ड इन ईच ऑफ दीज पिक्चर्स? यू कैन चूज द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो. सो चलिए, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज, as you in the first picture you can see a car with the cylinders at its back. ओके, इसकी जो डिग्गी है उसमें सिलेंडर्स पड़े हैं. ओके, सो व्हाट इज दिस एनर्जी? दैट इज CNG. ओके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोला जाता है, दैट इज CNG. आपने देखा होगा CNG स्टेशंस भी होते हैं. ओके, जैसे पेट्रोल स्टेशंस होते हैं, जस्ट लाइक दैट देयर CNG स्टेशंस, जहाँ पे ये जो CNG से चलने वाले व्हीकल्स जाते हैं. देखिए, कई आपने ऑटो देखे होंगे जिसमें आप बैठते हो तो कई बार उसमें सिलेंडर की स्मेल आती है. सो दैट मीन्स दैट ऑटो इज रनिंग ऑन CNG. तो वो CNG यूज करता है. सम ऑटो दे यूज पेट्रोल, बट सम ऑफ देम दे यूज द CNG ऑल्सो. दैट इज द कंप्रेस्ड नेचुरल gas. Okay, so this form of energy is CNG. That is CNG. Second one. Okay, you can see the solar plates in the second picture. This is the solar plates you can see in the second picture. आपने देखा होगा मोस्टली जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके ऊपर ये सोलर प्लेट्स लगी होती हैं. तो क्या होता है कि जब भी सूरज उगता है तो वो सोलर प्लेट्स हैं, वो सूरज से जो रोशनी अब्जॉर्ब करके, सो उनकी रेस अब्जॉर्ब करके उनको एनर्जी, एक एनर्जी में कन्वर्ट करके जो बैटरी उसके साथ अटैच होती है उसमें उस बैटरी को चार्ज करते हैं. लेटर ऑन उसी बैटरी से जो लाइट्स हैं वो
जलती हैं. So the energy that we get from the sun is known as solar energy. Okay, so solar energy हमें किससे मिलती है? That is from the sun. And as you can see the picture, the solar plates are there. So this solar plates, they are found from sun. So solar energy we get from sun. Third one, okay, you can see the picture of the electricity poles here. Large electricity poles are here. So what is this kind of energy? कौन सी energy है? That is electricity energy. Electricity is also a form of energy, beta. Okay, so that is electricity. Okay, so that is electricity. E-L-E-C-T-R-I-C-I-T-Y. That is electricity. Sorry. Next is the picture. Okay, you can see windmills are here. So जब बहुत हवा चलती है तो ये windmills हैं जो rotate करने शुरू करते हैं, start rotating. Okay, so which energy you will get from that is wind energy. Okay, so wind energy हमें किससे मिलती है? Wind से. Okay, so these windmills they run through the winds. तो wind से जो है जब हवा बहुत तेज चलती है तो ये windmills हैं जो ये घूमना शुरू करते हैं. उनके साथ एक रोप अटैच होती है जिसकी वजह से उनके नीचे एक जनरेटर्स होते हैं. ओके, जब ये विंडमिल्स चलते हैं तो वो जनरेटर्स भी मूव करते हैं जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड दैट इज लेटर ऑन यूज्ड एज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो दीज आर द विंड्स. सो विंड मिल्स प्रोड्यूस विंड एनर्जी एंड दैट वी गॉट फ्रॉम द विंड्स ओनली. WIND, that is wind energy. Next is fifth. So in this fifth picture you can see a jet जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट जेट या जेट्स होते हैं. ओके, जो these are like the planes only. Okay, but they are small in the size of as compared to the planes they are very small in the size. Okay, so इसके अंदर एक फ्यूल यूज होता है. Okay, there is a separate fuel for the jets, for the planes, that is jet fuel. Okay, ये नहीं कि आप पेट्रोल डालेंगे और नॉर्मल प्लेन उड़ जाएगा. दिस इज नॉट जो फ्यूल होता है. देखिए हर चीज का अलग अलग फ्यूल होता है. ओके, जैसे कैरोसिन से हम जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं वो अलग है, दैट इज ऑल्सो ऑयल. ओके, मिट्टी का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, दिस ऑल आर फॉर्म ऑफ ऑयल. ओके, ये रिफाइन करके अलग अलग स्टेजेस पे निकलता है. ओके, बट हर जगह जो इसका यूज है, यूटिलाइजेशन है, वो अलग अलग चीजों के साथ होती है. ओके, एंड दिस इज जेट फ्यूल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द जेट फ्यूल. JET, जेट फ्यूल. FUEL, दैट इज जेट फ्यूल. नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ अ डैम. ओके, जब डैम है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द डैम्स विद द हेल्प ऑफ वाटर. पानी की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है डैम्स में. हाउ? ओके, सो जब पानी का जब फ्लो आता है तो जो नीचे टर्बाइंस लगी होती हैं. ओके, तो वो टर्बाइंस जब पानी उसके ऊपर गिरता है तो वो टर्बाइंस जोर जोर से घूमना शुरू हो जाती हैं एंड दैट प्रोड्यूसेस द एनर्जी, दैट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी. Okay, so the water is used for producing the kinetic energy and that is mostly जो dams में जो waters होता है that is used for producing electricity. Okay, okay, so the next answer of the sixth one is water. So the energy that is used in the dams for producing electricity is water. So water produces the kinetic energy. Last is you can see the picture of वुड एंड कोल. जो कोल है, वुड है. ओके, लोग अंगीठी जलाते हैं. ओके, ड्यूरिंग विंटर्स यूजुअली जो लोग हैं मतलब वी सेल्फ हम तापने के लिए या गर्म करने के लिए एंड इन द ढाबा स्पेशली इफ यू हैव वेंट ऑन अ ट्रिप टू बाय रोड सो यू हैव सीन द ढाबाज. जो हाईवे पे ढाबाज होते हैं उसमें मोस्टली जो ये वुड और कोल यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द चपातीज. ओके, जिसको हम की तंदूरी रोटी बोलते हैं. ओके, सो ये क्या करते हैं, ये इसको यूज करके दे prepare the food. Okay, so this is the form of a wood and coal. So this is what form of energy they are using? They are using wood and coal. They are using wood and coal. COAL, that is coal, जिसको कोयला बोला जाता है.
Okay. So these are the answers from page number 71. The first one is the CNG, that is compressed natural gas. Second is sun, Suraj. Third is electricity, Bijli. Fourth is wind, Hawa. Jet fuel, fuel is like form of a petrol. Okay. Water, that is the sixth one, that is pani जिसको हम बोलते हैं. The last one is the wood and the coal. Okay. So you can just pause the video and write the answers. Okay. So with this, I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next class. So till then, everybody, have a good day.